Namaskar. Good evening, viewers. You're watching House Highlights on Sansad TV. I'm your host, Rajiv Kumar. In this program, we will look at the highlights of Wednesday's proceedings in the Parliament. Let us first take a look at the headlines. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023 after discussion. The Forest Conservation Amendment Bill and the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill also passed by the Upper House. Matters of urgent public importance raised during question hour in Lok Sabha. Railways Minister Ashwini Vaishnav informs members Railways taking measures to ensure security of passengers. Upper House conducts a formal business. Members raise issues of public interest in question hour. Let us begin with the proceedings in the Upper House. In the Rajya Sabha, when the House met for the day, Chairman Jagdeep Dhankar disallowed 58 notices under Rule 267 moved by opposition parties on the Manipur and other issues. The Chairman said these notices were not accepted as he had already accepted a short duration discussion on the issue under Rule 176 on July 20th. He said that there was an impression in media that the time allocated for discussion under Rule 176 was limited to 2.5 hours. The chairman clarified that he had already indicated to the House that there was no time limit for discussion on the Manipur issue under Rule 176. I have received 58 notices under Rule 267. Before I reflect on this, I need to indicate that there is an impression in certain section of media that the time that was allocated at my end for discussion under Rule 176 was limited to 2.5 hours. Honorable members are fully aware that I had indicated to this August House that there is no time limit for discussion on Manipur issues under Rule 176, and that all segments of the House will have full say. So that impression which has been generated in the media is not factually correct. As regards these notices, honorable members, I had on 20th of July 2023 already imparted a ruling and had agreed for acceptance of notice under Rule 176. The government had agreed for discussion. That was listed also. Unfortunately, it could not fructify. Coming to the present notices, from 20th July and thereafter, every day, number of notices on the same issue are being received. I leave it to your wisdom, I leave it to your introspection, whether such an approach, after in categorical firm terms, I have taken a call that the notices are not in order and are not accepted. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar on Wednesday turned down the opposition's demand to issue a directive to Prime Minister Modi to speak in the Parliament over the Manipur issue. Chairman clarified that there is no parliamentary prescription to the effect and any such directive will be a violation to the oath of his office. I had in categorical terms indicated very firmly on a proper constitutional premise and precedent that from this chair I will be violating my oath if I impart a directive for presence of the Honorable Prime Minister. That has never been done. It is surprising to me that Honorable LOP, Mr. 1 second, I cannot make up, honorable members, one second, I cannot make up for ignorance of the statute and constitution. If the Honorable Prime Minister wants to come, like everyone else, it is his prerogative. From the chair, a directive of this nature, which has never been issued,
will not be issued. Chairman Dhankar on Wednesday said that there can be no intermediary between the chair and the leader of opposition. I will give the floor to the Honorable LOP, but before that I will say one thing. I would urge every member, particularly those who have experience, why should they rise on their seat and plead for LOP to be given time? In the process, one second, in the process, honorable members, those of the honorable members who are indicating to the chair that a distinguished part of this House, leader of the opposition, be given time, are doing two grave injustice. One, they are doing grave injustice to the stature of the LOP. The LOP, in his own right, has a position, and as chair, I have to take note of it. And secondly, they are doing injustice to the chair also. There can be no intermediary. There can be no intermediary between me and any member. The thing has to be between the chair and the member concerned, and LOP has elevated position. Parliament passed the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2023 with Rajya Sabha approving it on Wednesday. Lok Sabha has already passed the bill. Replying to a discussion over the bill, Coal and Mines Minister Prahlad Joshi described the bill as a game changer for the mining sector. He said it was necessary because the country relies on imports of various precious and critical minerals, including lithium and cobalt. He said, to become the third largest economy in the world, India needs exploration of these minerals. Initiating the discussion, Sasmit Patra of BJD supported the bill, saying that it is crucial for the mining sector. माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है और देश का लक्ष्य है कि नेट जीरो करना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर हमको आगे जाना है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का भी मांग बढ़ते जा रहा है। इसके लिए लिथियम का जरूरत है, कोबाल्ट का जरूरत है, और हमने एक संकल्प लिया है 2070 तक हमने नेट जीरो एमिशन के लिए हमने कमिटमेंट किया है। फॉर दिस रीजन ऑल्सो द क्रिटिकल मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। और दुनिया के स्तर पर लाने के लिए, इन ऑर्डर टू ब्रिंग एट पार विथ द वर्ल्ड डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर ब्रिंगिंग दिस legislation. Rajya Sabha on Wednesday passed Forest Conservation Amendment Bill 2023. The bill has been passed through a voice vote. Replying to a discussion over the bill, Environment Minister Bhupendra Yadav said the bill has been brought with an objective to increase green coverage and reduce carbon emissions. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 50 साल के जो टाइगर कंजर्वेशन का प्रोग्राम हुआ है, उसमें हमें इस बात पे गर्व है कि अब हमारे देश के जो टाइगर रिजर्व हैं, जो एनटीसीए के अंतर्गत आते हैं, वो उनकी संख्या बढ़कर के 53 हो गई। हमारे जो एलिफेंट रिजर्व्स हैं, उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है। देश का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया केवल उनके लिए हमने रिजर्व किया है। इतना ही नहीं, हमारे फॉरेस्ट के जितने भी प्रकार हैं, चाहे हमारा फॉरेस्ट हिमालय के क्षेत्र में आता हो, चाहे हमारा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देश के बीच में आता हो, ये जितने भी क्षेत्र प्रकार के फॉरेस्ट हैं, इसके साथ ही साथ हमने तो 3600 किलोमीटर का डेजर्ट फॉरेस्ट भी रिजर्व किया है, क्योंकि हम हर प्रकार की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सेव और प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। The upper house also passed the Jan Vishwas Amendment of Provisions Bill 2023 on Wednesday. Union Minister of Commerce Piyush Goyal stated that the endeavour is to endow ease for
facilitating business and emanates from the Prime Minister's belief in the people. हमने एक नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जो कोई उद्योग चलाना चाहे, कोई व्यापार करना चाहे, कोई नया काम शुरू करना चाहे, वो उसमें जाके उसमें एक नो योर अप्रूवल्स का सेक्शन है। अगर बताए कि मुझे चमड़े का कारखाना शुरू करना है, जैसे वो बताते हैं तो हम उस नेशनल सिंगल विंडो से उनको गाइड करते हैं कि आपको कौन कौन से कानून और कौन कौन से प्रावधान लागू होंगे, और उसके हिसाब से फिर आप अप्रूवल्स भी उस सिंगल विंडो के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं। और हमने स्टेट्स को भी आमंत्रित किया है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कई स्टेट्स इसमें जुड़े हैं। लगभग देश के सभी स्टेट्स राजनीति को छोड़ के, राजनीति से और ऊपर उठ के लगभग सभी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज उसमें जुड़ रहे हैं। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar conducted the question hour amid din. Education Minister Dharmendra Pradhan, among others, answered the questions pertaining to his ministry. क्या कार्बन न्यूट्रल पंचायत निर्माण के लिए देश में 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे COP26 सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, वहाँ जो कमिटमेंट किए गए थे उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में COP26 सम्मेलन में अपने बहु प्रशंसित संबोधन में पंचामृत के रूप में ज्ञात एक कार्य योजना को विश्व के सम्मुख किया, जो भारत को वर्ष 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन की अवस्था तक पहुंचाएगा। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में लगभग 2,60,000 पंचायतों को भी प्रयास करने की आवश्यकता है और भागीदारी लेने की भी आवश्यकता है। पंचायतों को अक्षय स्रोतों से उत्पन्न की हुई बिजली जो है, वो बिजली को वितरण कंपनियों के ग्रिड से जोड़कर मुद्रीकृत भी किया जा सकता है। Kannadigas thanks Prime Minister for the great gift. Sir, there more than 500 families are staying there, but the KVS has been given to Tumkur. Sir, the distance between Tumkur and Gupi is almost 30 kilometers. We'll be very grateful if one more KVS is been allotted for the government employees who are working. Honorable Minister. Opening of Kendriya Vidyalaya is a continuous process. The two conditions, I have gone through the question. The Gobi plant, helicopter manufacturing plant, is the central government PSU BHEL, HL. If they applied for the Kendriya Vidyalaya through proper channel, certainly Kendriya Vidyalaya Sangathan will look into the issue. The upper house on Wednesday witnessed lighter moments and hilarious exchanges during question hour. Take a look. एक परंपरा को सभी को समझना चाहिए, सीखना भी चाहिए। आपने संकेत में कह भी दिया है, और ये मूल प्रश्न से आज के अभी जो आदरणीय सदस्य का जो मंत्री है भी, उनकी कोई संबंध नहीं है। मैं उनके साथ अलग से चाय पे चर्चा कर लूँगा। गडकरी साहब की पूरे देश में इतनी प्रशंसा होती है, इतनी प्रतिष्ठा होती है। हमारे सीधी सिंगरौली के लोग पूछते हैं कि सीधी सिंगरौली में आके क्या हो जाता है, तो मैं ये निवेदन करूंगा कि कम से कम भविष्य में ये प्रश्न ना खड़ा हो। But before that, ये प्रशंसा है ना, it is not limited to this country only. I have been abroad thrice. I can share it with you. Honorable Minister. सर, आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महाराज, ये बात कह रही है सही है। मुझे भी बड़ा इसका जवाब देते समय गिल्टी कॉन्शियस महसूस होगा। Time for a very short break in the bulletin. News from the lower house on the other side. Leadership in Empower G20 will also bring solutions for global economies and women at the center of it.
Welcome back. Let us now have a look at the proceedings in the Lok Sabha. The lower house started with the question hour. The first question, numbered 181, was for the Textiles Ministry on the subjects slated as raw materials for manufacturing of clothes. BJP member from Ratlam, Madhya Pradesh, Guman Singh Doma, and YSRCP member from Anakapalle, Andhra Pradesh, Dr. B. Venkata Satyavati, posed queries, which MOS Textiles Darshana Vikram Jardos responded. मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूं कि क्या मेरे लोकसभा क्षेत्र के जिला मुख्यालय रतलाम में, जहां पर शासकीय भूमि करीब 4000 एकड़ उपलब्ध है, वहां पर पीएम मित्र पार्क की स्थापना करेंगे? जब पीएम मित्रा पार्क की कल्पना की गई और इसके साथ में जब उनकी प्रपोजल गई पूरे देश में, तो पूरे देश में से 12 राज्यों से हम लोगों को प्रपोजल मिला और इसमें सभी राज्यों 7 राज्यों को प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया, जो गतिशक्ति मॉडल के माध्यम से पूरी इकोसिस्टम से जो काम करने वाली जगह है। तो ये जो प्रस्ताव है इसमें 51% जो योगदान है वो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो उन्होंने धार, रतलाम और कई 4 जगह से प्रपोजल भेजा था, लेकिन धार पसंद किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के साथ मिलकर वहां उनका MOU भी साइन किया गया है, जहां एक जगह में एक साथ में कई सारे लोग एक जैसी चीज वस्तुओं का हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कर पाएंगे। जो ग्लोबल सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए ये पार्क की कल्पना की गई है। 4445 करोड़ का ये जो बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है, इसमें 7 राज्यों ने प्रपोजल दिया है और 7 राज्यों की प्रपोजल, 12 में से 7 राज्यों की प्रपोजल हमने एक्सेप्ट कर ली है। जनजाति क्षेत्रों में हाथ से कपड़ा बनाने का काम होता है और उनका वेजिटेबल कलर से उनकी डिज़ाइन बनाई जाती है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने की कोई योजना है? जो ये वेजिटेबल डाइस की बात कर रहे हैं, जहाँ नेचुरल कलर से बनते हुए कपड़े, उसकी बहुत सारी डिमांड है। और आज उन्होंने जो रतलाम में जो पूछा है, वहाँ रंगाई डाइंग ट्राइब कक्षा की ट्राइब के लिए उनके बाजू के जिले में, नीमेर जिले में हम लोगों ने वहाँ पे एक हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट का क्लस्टर है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग भी कराई गई। हमारे पहचान पत्र है जो आर्टिजन को मिलते हैं, जो पूरे आधार कार्ड से जुड़े हुए हैं। इसके बाद में उसको मार्केट लिंकेज, रॉ मटेरियल सप्लाई और कई कौन से नए नए प्रकार के वस्त्र में बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल में वैरायटी मिल जाए, उसका सपोर्ट। अगर उनको वर्किंग शेड चाहिए, बड़ा वाला टूल इक्विपमेंट, सोलार सिस्टम से चलने वाले चरखे, सभी उपलब्ध कराई जाती है और ट्रेनिंग भी होता है। जो हमारे मास्टर ट्रेनर होते हैं, इसमें भी हम लोगों ने एक सुविधा रखी है कि हमारे कोई पद्मश्री अवार्ड विजेता है, जिनको अगर आप वो किसी अपनी कला दूसरे को सिखाना चाहते हैं, तो सीखने वाले को 300 रुपया प्रति दिन 45 दिन तक मिलेंगे और उसको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और सिखाने वाले को 1000 रुपया। तो समर्थ योजना के माध्यम से ऐसे आदिवासी क्षेत्र को हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जितने क्लस्टर है सभी को जोड़ा गया है। Has the government considered supporting the domestic textile sector and the handloom sector to make them self-sufficient? And if so, what are the steps that are being taken in this regard? And when the import of raw materials for the textile industry can be phased out completely? आज़ादी के अमृत काल में जो हमने संकल्प किया है कि हम लोग पूरी इकोसिस्टम से काम करेंगे, तो टेक्सटाइल में जूट भी है, सिल्क भी है, कॉटन भी है, मैनमेड फाइबर भी है, टेक्निकल टेक्सटाइल है। तो सबको बढ़ावा देने के लिए जो चीज़ जरूरी है, इसमें आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ते हुए हमने कदम उठाए हैं। उन्होंने जो सवाल पूछा, इसमें PLI स्कीम के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया से 64 प्रपोजल जो आई, जो 10,683 करोड़ की PLI स्कीम, जिसमें बड़े प्लेयर्स आके यहाँ इन्वेस्ट कर सके, PM मित्रा पार्क में उनका इन्वेस्टमेंट हो जाए, क्वालिटी का प्रोडक्शन हो जाए, और वो काम शुरू हो चुका है। Question number 182 was asked to the Ministry of Railways. The question was related to the implementation of CCTV on railway stations. Members Tirath Singh Rawat and Dr. Sanjay Jaiswal had queries, and both their questions were answered by Railways Minister Ashwini Vaishnav.
माननीय मंत्री जी ने जैसे कहा कि राज्य से होकर चलने वाली कोई भी ट्रेन पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित नहीं है। हालांकि इसमें कार्य जारी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि क्या असामाजिक तत्वों, अपराधियों को जो पता लगाने के लिए सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, सक्षम वीडियो एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर और चेहरे की पहचान सॉफ्टवेयर कब तक होगा? ये विषय उठा है जिसमें कि सीसीटीवी के माध्यम से हम पैसेंजर्स को किस तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं दे सकते हैं। माननीय सांसद जी ने जो पॉइंट उठाया है कि कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। रेलवे ने इस काम के लिए बहुत सारे प्रयास किए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। उन इनिशिएटिव्स के बारे में मैं आपको आपके माध्यम से सदन के सामने रखना चाहूँगा। सीसीटीवी कैमरा आज की तारीख में एक बहुत ही इंटेलिजेंट यूनिट बन चुका है, जिससे कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ का उपयोग करके, जैसे फेस रिकग्निशन, जैसे AI, एक प्रॉपर सर्वेलेंस सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम बन सकता है जिससे कि एक एडवांस में जानकारी मिल सके, जिस जानकारी से जो भी कोई दिक्कत आनी हो, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई पॉइंट हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। अब तक करीब 866 स्टेशंस पे अच्छा एक सीसीटीवी का सिस्टम लग चुका है और इसके अच्छे परिणाम भी आए। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले समय में कई उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों से जो बच्चे कहीं से ट्रैफिकिंग के जरिए ले जाए जा रहे थे उनको बचाया गया। कई जगह महिलाओं के सम्मान की रक्षा हुई, कई जगह कुछ बुजुर्ग व्यक्ति जो कि असुविधा में थे उनको सुविधा मिली। बहुत सारे ऐसे मामले, कुछ व्यक्ति परेशान करने की कोशिश कर रहे थे पैसेंजर्स को, वो भी रोका गया। एक तरीके से बहुत सारे जो दिक्कतें थी उनको सॉल्व किया गया है। और जो विशेष प्रश्न पूछा है IP बेस्ड सीसीटीवी कैमरा के बारे में, उसके बारे में मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने स्पेसिफिक रखना चाहूँगा। IP बेस्ड वीडियो कैमरा से IP बेस्ड सीसीटीवी कैमरा में साइबर सिक्योरिटी वाला एलिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो साइबर सिक्योरिटी वाले एलिमेंट को ध्यान में रखते हुए बहुत ही स्ट्रिक्ट स्पेसिफिकेशन बनाए गए हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इसीलिए स्पेसिफिकेशन इस तरह के बनाए गए हैं कि किसी तरह की थ्रेट न हो, कोई ऐसा विदेशी देश कोई उसको कॉम्प्रोमाइज़ न कर सके। इन सब भावनाओं के साथ, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिकेशन किए गए और सीसीटीवी का आगे प्रसार हो रहा है। कि रक्सौल में यासीन भटकल ब्रदर्स पकड़े गए थे जो नेपाल से आ रहे थे, उसी प्रकार चाइना के 2 व्यक्ति अभी पकड़े गए जो बिना वीज़ा के भारत नेपाल सीमा पार कर रहे थे। तो भारत नेपाल सीमा के क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन है, रक्सौल, भिलाई, आदापुर और छड़ा दानो, क्या इन स्टेशन पर जो कि 1 किलोमीटर से भी कम नेपाल सीमा पर है, उन पर वहाँ की सेंसिटिविटी भारत नेपाल सीमा को ध्यान रखते हुए क्या उन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का विचार रेल मंत्रालय कर रहा है? जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे स्टेशन हैं रेलवे के, उन सब के सब स्टेशंस पे विशेष सुविधाएं हर जगह दी गई है। चाहे वो भारत और बांग्लादेश की सीमा हो, चाहे वो भारत और नेपाल की सीमा हो, हर एक क्षेत्र में बहुत ही विशेष सुविधाएं की गई है। वहाँ पे RPF का स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया गया है। कई जगह सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। कई जगह वहाँ पर जो लोकल पुलिस है, राज्य की पुलिस के साथ भी और विशेष कोऑर्डिनेशन करके, और कई जगह पे BSF के साथ कोऑर्डिनेशन करके उन सब जगहों पर जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों के कारण अधिक चैलेंज है, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष सुविधाएं की है। और जो माननीय सांसद महोदय ने जो 4-5 स्टेशन के नाम बताएं, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके मैं माननीय सांसद महोदय को जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक तरीके से हर एक स्टेशन पे यात्री सुरक्षित रहे, यात्रियों के जान माल की सुरक्षा, यात्रियों के सामान की सुरक्षा
और जिस तरह से और भी दूसरे क्राइम को प्रिवेंट करना हो, उसके लिए पूरी तरह से रेलवे प्रयासरत है माननीय अध्यक्ष जी। A question related to steel exports was slated to be asked by Gaurav Gogoi, who wanted to know from the Minister of Steel the details of the government initiatives and plans to address the sharp decline of 50.2% year-on-year in steel exports during fiscal year 2023. The Minister of Steel, Jyotiraditya Scindia, in his written reply has said that an analysis of quarter-wise export of finished steel indicates that one of the reasons in the fall of 50.2% in export of finished steel in 2022-23 was due to imposition of export duty between May to November 2022, considering increased consumption of steel and prevailing inflation. He further says, government has taken steps which include removal of export duty on certain steel products in November 2022, levied in May 2022. After the House reassembled at 2 p.m., Kirit Bhai Solanki chaired the proceedings. Important papers related to only 4 departments were laid on the table of the House. Ministers Jitendra Singh, Arjun Ram Meghwal, Ashwini Kumar Chaube and Rao Saheb Danve laid papers on the table of the House. Kirit Solanki appealed to the members not to disrupt the proceedings of the House. However, as the House continued to be in disorder, Lok Sabha was adjourned for the day to meet at 11 a.m. on Thursday, 3rd of August. माननीय सदस्यगण, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए, वेल में मत आइए। आप वेल में मत आइए। सदन को चलाने दीजिए। वो भी बैठ जाएंगे, आप भी बैठ जाइए। आप पहले आप अपने स्थान पर चले जाइए। ये कोई तरीका नहीं होता है। पूरा देश हमें देख रहा है। पूरा देश हमें देख रहा है। आपको मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 3 अगस्त 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। With this, we come to the end of the House highlights. For daily updates, keep watching Sansad TV. Good night.